students, welcome to the 11th video of issue of shares. Okay, this is the third part of oversubscription of shares. Okay, today in this video we will discuss a third alternative of adjusting oversubscription of shares. Okay, in the previous two video, that is previous video 9th and video 10th, we discussed about oversubscription, first alternative, second alternative. Okay, in this video we will discuss the third alternative. Third alternative is combination of above two. Above two means when some shares are rejected and amount is refunded, and pro rata allotment. Okay, so third alternative is here we will refund some share and we will adjust some shares. This is the most common method in practice. Okay, so let's see. Okay, so third alternative, pro rata allotment, adjustment plus refund. Okay, here we have taken an example. Issued shares 10,000 of rupees 10 each, payable on application rupees 3, on allotment rupees 4, and balance on first and final call. Okay, so here we have taken 3 installment. Okay, application received for 15,000 shares. Okay, we have issued 10,000 shares, but we received application for 15,000 shares. So there is an excess of 5,000 shares. Okay, there is an excess of 5,000 shares. So how the company dealt with that? Company said shares will be allotted as follows. First 8,000 shares will be allotted 8,000 shares. Okay, then next 3,000 shares will be allotted only 2,000 shares, and next 4,000 shares will not be allotted anything. Okay, their application is rejected and amount is refunded. Okay, so this is the applied shares and this is the allotted shares. Okay, see the total here 8, 11, 15. Okay. So 15,000 shares are applied by the public, but company cannot allot 15,000 shares. Company cannot allot 15,000 shares. Company can allot only 10,000 shares. Okay, तो ये 15 और 10,000 में कंपनी डिड सम एडजस्टमेंट. व्हाट इज द एडजस्टमेंट? फर्स्ट रिफंडेड. ओके, तो फ्रॉम 15,000 4,000 is refunded. Okay, okay, listen here. Suppose there are 3 shareholders. Okay, there are 3 persons, A, B and C. Okay, A applied for 8,000 share. Okay, company agreed to give him all the 8,000 shares. Okay, then B applied for 3,000 shares. Company said कि we cannot issue 3,000 shares to B क्योंकि कंपनी के पास A को 8,000 देने के बाद सिर्फ 2,000 shares बचा है. तो what the company did here? Company took total 3,000 shares amount from B से पूरा 3,000 शेयर्स का पैसे रख लिए और उसको बोले कि हम तुमको सिर्फ 2,000 शेयर्स अलाउड करेंगे. नाउ हियर इज नो एक्सेस. हियर देयर इज नो एक्सेस. ओके, बट हियर वी हैव एन एक्सेस ऑफ 1,000, है ना. हियर वी हैव एन एक्सेस ऑफ 1,000 शेयर. तो ये 1,000 शेयर कैसे एक्सेस होगा? एडजस्ट होगा इन अलॉटमेंट. दिस 1,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड इन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. ओके, एंड दिस C applied for 4,000 शेयर. तो we completely rejected the application of C
एंड वी रिफंड द अमाउंट. ये अमाउंट क्या हुआ, रिफंड हो गया. ओके, नाउ सी दिस वर्किंग नोट हियर. ओके, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. जब एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ, वी रिसीव्ड 15,000 एप्लीकेशन at ₹3. तो द अमाउंट रिसीव्ड इज ₹45,000, है ना. वी रिसीव 45,000. देन ऑलवेज रिमेंबर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जो हम लोग एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो जो एंट्री होता है उसमें जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है वो हमेशा इश्यूड शेयर्स ट्रांसफर होता है. शेयर कैपिटल में एवरी टाइम वी विल एंटर इश्यूड शेयर्स. जितना शेयर इश्यू किए हैं वही आता है शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो वी इश्यूड 10,000 शेयर्स. ओके, तो द अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट फॉर 10,000 शेयर इज 30,000. ओके, बैलेंस इज 15,000. ठीक है, वी रिसीव 45,000, उसमें से 30,000 को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. बैलेंस इज द 15,000. ओके, दिस 15,000 इज द एक्सेस. 15,000 क्या है, इट इज द एक्सेस, है ना. 5,000 शेयर इज एक्सेस. 5,000 इंटू 3, 15,000 इज द एक्सेस. अब 15,000 में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पे 1,000 शेयर को एडजस्ट कर रहे हैं. हम लोग कितना एडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 शेयर्स को. तो 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं. ओके, एडजस्ट का मतलब एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. ओके, तो 3,000 हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, ओनली 3,000. सो दिस अमाउंट 15 माइनस 3, 12,000. 12,000 इज द अमाउंट रिफंडेड. 12,000 क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है. ओके, तो शेयर 4,000 शेयर्स नील, तो 4,000 इंटू 3, ये वैसे भी 12,000 आ रहा है और माइनस करने से भी क्या आ रहा है, 12,000 आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जा रहा है और जो रिफंड करना है वो रिफंड हो जा रहा है. ठीक है, नाउ हियर रिमेंबर व्हेनेवर अमाउंट इज रिफंडेड और शेयर इज रिजेक्टेड, कंपनी सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट टू सच शेयर होल्डर्स whose शेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड. ओके, जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है उसको कंपनी लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करता है. ओके, तो हियर वी हैड प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 3,000 शेयर एंड रिफंड ऑफ 3,000 अमाउंट एंड रिफंड ऑफ 12,000 रुपीज. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. दिस वन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अलॉटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना. प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड रिफंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है, बट याद क्या रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में वही जाएगा जितना इश्यू की. इश्यू से ज़्यादा कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता. ओके, इश्यू याद रखना है और रिफंड याद रखना है. क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में, कि कितना हम लोग इश्यू कर रहे हैं और कितना हम लोग रिफंड कर रहे हैं. तो हमको ये चीज़ हमेशा मिल जाएगा, अमाउंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हमको डायरेक्ट समझ में आ गया कि कितना एडजस्ट कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है वो सिंपली समझ में नहीं आता. तो वहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, वहाँ पे ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल में जितना भी इश्यूड है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो और रिफंड कितना हो रहा है. ये दो चीज़ को ध्यान रखोगे तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है वो पता चल जाएगा. ओके, एंड वन मोर थिंग, जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं ये एडवांस है. वो क्या है, एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है उसको एडवांस मान के हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स सी जर्नल एंट्री. So this is a journal entry. First, just have a look. Okay, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे दो चीज़ आएगा, अभी छोड़ें इसको.
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो जनरल एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे करते थे वही हो रहा है। हमको कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या है कि कुछ शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, कुछ शेयर रिफंड हो रहा है, ठीक है। तो बैंक जब एप्लीकेशन जब रिसीव होता है वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होता है ना। तो एट दैट टाइम सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान क्या रखना है, कितना शेयर रिसीव हो रहा है। वी रिसीव 15,000 शेयर्स, तो 15,000 शेयर का अमाउंट 45,000, ओके। बट जब ट्रांसफ़र करते हैं तो याद रखना है कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होता है, ओनली जितना इश्यू किए, जितना हम इश्यू किए। तो वी इश्यू 10,000 शेयर्स, ओके। हम अब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, किस में एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में, एंड सम शेयर्स आर रिफंडेड। तो दो शेयर्स विच आर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट वी विल राइट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो एडजस्ट हो रहा है, एंड टू बैंक अकाउंट जो रिफंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो पिछला जो दो अल्टरनेटिव देखे थे दोनों में कुछ एक आ रहा था, है ना, या तो बैंक आ रहा था या अलॉटमेंट। 9th वीडियो में हम यहाँ पे क्या लिखे थे, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल टू बैंक, है ना। 10th वीडियो में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो सिंगल सिंगल था। अभी हम दोनों को कंबाइन कर दिए। ये हमारा जो अल्टरनेटिव है कॉम्बिनेशन है अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड रिफंड का। तो जो अलॉटमेंट में जा रहा है वो अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा, जो रिफंड हो रहा है वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ओके। तो शेयर एप्लीकेशन 45 है, तो हियर आल्सो शेयर एप्लीकेशन 45,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होता है, जितना इश्यू होता है। तो 10,000 टू 3 13,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल। अलॉटमेंट में हम सिर्फ 1,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। कितना एडजस्ट कर रहे हैं, ओनली 1,000 शेयर्स। तो 1,000 इज ओनली 3,000 रुपीज, एंड रिफंड कितना हो रहा है 4,000 शेयर्स। रिफंड हो रहा है 4,000 शेयर्स, तो 12,000, ठीक है। लुक बोथ साइड टोटल इज सेम, 33 + 12 45,000, ये आल्सो 45,000। तो बस सिंपल है। एप्लीकेशन का जब कैपिटल एंट्री होता है ट्रांसफ़र वाला, देयर वी हैव टू रिमेंबर कि जितना एडजस्ट कर रहे हैं डेट विल बी कम इन अलॉटमेंट, और जो रिफंड कर रहे हैं वो बैंक। फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेटिव को मिला देना है, ओके। नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री हम लोग किस में आ जाएंगे, वापस इश्यूड पे। ये जो 15,000 शेयर्स था वो एडजस्ट हो गया, है ना। तो कंपनी को सिर्फ 10,000 शेयर्स पे काम करना है, तो अलॉटमेंट ड्यू होगा विथ 10,000 शेयर्स। प्राइस ऑफ ईच शेयर इज ₹4। तो अलॉटमेंट विल बी ड्यू फॉर 40,000, ओके, ठीक है। बट रिसीव कितना होगा, कंपनी विल रिसीव 37,000, ठीक है। कंपनी का ड्यू कितना है 40,000, बट कंपनी विल रिसीव 37,000। क्यों, क्योंकि 3,000 हम पहले एडजस्ट कर लिए। जो था एक पर्सन, ठीक है, उसका जो एक्सेस था उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब उससे हम बोलेंगे कि तुम 3,000 रुपीज़ दोबारा मत देना, जब अगला इंस्टॉलमेंट आएगा वहाँ पे 3,000 रुपीज़ कम देना, ओके ओके। तो अलॉटमेंट ड्यू है 40 से, बट वी विल रिसीव 37,000। क्यों, ये 3,000 एडजस्ट करके, ओके। देखो नरेशन इज सेम एज इन द प्रीवियस वीडियो, तो जैसा था वैसे ही है नरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपीज़ का शेयर था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट में, बैलेंस इज ₹3, ओके। तो अगेन अब यहाँ पे कुछ चेंज है नहीं, हमने कोई इससे कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। रिफंड था वो एप्लीकेशन का टाइम हो गया, अलॉटमेंट था वो भी एडजस्ट हो गया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा ड्यू एंट्री और सिंपल रिसीव एंट्री, ओके। तो ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
capital account. 10,000 share for rupees 3 each. Okay. Then we will receive बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा जर्नल एंट्री है. ध्यान क्या रखना है कि हमको एडजस्ट कहाँ करना है. ठीक है, हमारा एडजस्टमेंट कहाँ है, बस वही हमको ध्यान रखना है. ओके, क्योंकि जहाँ एडजस्टमेंट है बस वही जर्नल एंट्री चेंज होगा, बाकी कहीं कुछ चेंजेस नहीं होता. ओके, और याद रखो ये एक सिंपल क्वेश्चन था. हम लोग अभी एक जो सिंपल सा वर्किंग नोट बनाए, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो वर्किंग नोट काम ना करें, हमको टेबल बनाना पड़ सकता है. ठीक है, तो वी विल सी ऑल दोस्त जब क्लासेस स्टार्ट होगा. ठीक है, अभी के लिए बस ये समझो, कैपिटल जो इश्यू करते हैं वो कैपिटल में, अलॉटमेंट में एडजस्ट और रिफंड. ठीक है, तो यही एंट्री होता है जब प्रोरेटा और रिफंड एक साथ होता है. ओके, प्रोरेटा एंड रिफंड एक साथ हो रहा है तो जनरल एंट्री यही होता है. बस ध्यान क्या रखना है इस चीज़ पे कि अमाउंट कितना आएगा. तो कैसे याद रखोगे, कैपिटल में जितना इश्यू किए हैं कैपिटल में, रिफंड भी इजीली पता चल जाता है, तो कैपिटल और रिफंड पता लगा लोगे तो अलॉटमेंट अपने आप पता चल जाएगा. ओके, आई होप you have understand something. Okay, so that was a very important topic. Thank you.